Assalamu alaikum, dear students. I hope you're able to join in. I waited for your classmates to join. I think it's 10 minutes. They are sufficient enough. Could you please confirm in the chat box that I'm audible to you so that we can commence the class? A simple yes would suffice so that I know that you're able to hear my voice. Okay, Ayla can definitely listen to me. The rest of you, what about the rest of you, Vijay? Am I audible? All right. So I hope everybody is able to listen to my voice. I've added everybody who's tried to join in. I think today the strength is low. Only 9 or 10 people, okay, 8 people have joined in. Let's start because 10 minutes is sufficient enough. We are going to talk about another writer today. And yes, before we start this, I would like to definitely remind you about your project. I hope you're working on it. I hope you're clear about it. And even if you make some mistakes, don't worry. I'll be guiding you through and through. तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कोई mistake हो भी गई तो I'll give you some time to correct it. I understand. For most of you, this could be something new. This could be something that you've not done earlier. So we'll see how we can, make the best of it. Now, moving forward to the next writer, that is Sheikh Sadi. You probably have heard about him many times. People actually refer to him many times in many instances. But today we have an opportunity to know more about him and his work, which is usually most widely read in Persian language or Urdu language, Gulistan-e-Saadi. हो सकता है आपने गुलिस्तान-ए-सादी का नाम कभी ना कहीं जरूर सुना होगा. So we'll be talking about Gulistan-e-Saadi and some of his proverbial anecdotal write-ups. He has a very distinct way of writing. So one by one, I will try to unfold something about Sadi. He's usually also called by, or he's also referred by Sadi of Shiraz. Right? He's a poet, he's a philosopher, a critical thinker. He's a man of heart. He used to have, ways of expressing himself. Every writer that is available out there, even if it is a textbook writer, they have their own ways to write, and Sheikh Sadi had his own. He was highly anecdotal. When I say anecdotal, I mean to say that he based all of his proverbs and writings and most of the statements that he gave were based on his personal experiences. So, as one of the core messages and aims of our course is to be inspired, to be motivated, to be interested, to be more human. हमारे पूरे कोर्स के कुछ जो अलाइन CLOs हैं वो यही है कि हमें इंसानियत का पता चले, हमारे में हमदर्दी हो, सिंपैथी हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, सेल्फ प्रेस्टीज हो, इंटेग्रिटी हो, वही सारी चीजों की बात शेख सादी भी अपनी इस बुक में करता है, which is called Gulistan of Sadi. The version that we are taking, the edition that we are taking, the translated version that we are using for this class is by James Ross. There are other available, by the way. And within James Ross, उसने भी इसको multiple times update किया है. I've taken the most easiest version so that it becomes very easy for us to understand what's happening in the stories. ठीक है? So all in all, अभी तक आपको बस इतना पता चला है कि शेख सादी की जो बुक है गुलिस्तान ऑफ सादी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. And if we talk about Gulistan-e-Saadi, which is again in English version by or translated version by James Ross, is called Rose Garden. It is basically primarily a Persian work, and it is also called a classical work, which has the amalgamation and combination of moral wisdom,
poetic anecdotes, and personal experiences. The way he writes is really different. ठीक है, पहले वो आपको एक स्टोरी सुनाता है, then he ends it with a proverb, with a statement, with a declaration, or sometimes with poetry. The entire book, it's a big book by the way, there are 8 chapters, and within each chapter, there are multiple stories. It's about him, what he understood out of life. For example, you're almost 20 years old. You have met so many people. First of all, you have met your parents, your siblings, your immediate family, your extended family. Then it's probably your school buddies, your teachers, your mentors, your guiders or counselors, जिनसे भी आप daily basis पे मिलते हैं. All of them, they have something to offer. All of them, they have had their own ways to live a life. They have had their own ways to combat or battle the hardships of life. So Sadi is no different. He's Sadi of Shirazi. He's no different. He has gone through many phases of his life. This journey that he embarks on, this journey that he takes on, is not only physiological, which means that he's not just moving from one place to another, he's also evolving. He's also developing, he's also enhancing his ability to understand his life around him and much more. So it's not only a religious journey, an emotional journey, a spiritual journey, but it is also a journey of growth. You'll see that he comes across kings, he comes across common people, he'll talk about youth and love, silence, lust, and many other evils and virtues or vices or virtues of life. उन सब से जब वो गुजरता है तो he talks about what one can understand by it. तो ये सारी स्टोरी वो हमें सुनाने की इस पूरी कहानी में कोशिश करेगा. There are multiple stories, remember that, and multiple chapters as well. So the book reflects a lifetime of experiences and spiritual insights by Sadi. It is not just piece of literature, a mere piece of literature, but it is also a kind of a facilitation, a guide, a map for ethical living. Now, being ethical is something that has become very debatable over the years, specifically in today's world. Ethics or moral conduct has changed. The way people view it, the way people accept it, the way people let it go has changed. But since we are talking about Sheikh Sadi, and he is an old writer, right? So he is still very much black and white about this concept of morality. In my understanding, whenever I've asked students whether they are moral beings or not, they very clearly, some of them, they would say, yes, they have morality. Some of them would stay silent, and some of them would be self-reflective enough to accept that they are not so moral after all. They are not so ethical after all. I can only share some examples with you. The other day, I met a professor in another university, and he was talking about how his moral compass or landscape has been compromised because he had to pass a student just because the student had some kind of connection within the university and he, surpassed him. So he felt that he was at a loss, which means that his spiritual inner being or his inward feeling were bothering him that he has done something wrong. अब देखिए, if a student has not attended a classes or participated at all or did not give the midterm or the any part of the crucial assessment is missing, then if an instructor is asked to do wrong deed, अब इसमें बहुत सारे dilemmas क्या होते हैं, conflicts involved हैं. It's also about his job. It's also about his facing his face saving. Face saving एक concept होता है. इसका मतलब ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेशराइज कर रही थी उन्हें, बच्चा भी, और जहाँ से कॉल आ रही वो भी, वो सारी फेस सेविंग के लिए भी he found another way to accommodate him and he gave him another chance. I believe, I think multiple assignments were
assigned to him to pass है. He probably had a medical reason as well, but he told the instructor too late. यानी उन्होंने inform ही नहीं किया तो कुछ मतलब out of hand situation हो गई. अब इस experience से जो professor थे, he felt a little at unease. Unease होने का मतलब ये है कि uncomfortable feel हुआ. Let's talk about students. Sometimes students who are good students who do not cheat in the examination at all, they see people around them, they see students, their classmates cheating all the time. And कहीं ना कहीं उनका जो morale है, उनकी जो ethical background है या ethical state है, वो कहीं ना कहीं shake हो जाती है. वो थोड़े से डिसहार्ट हो सकते हैं कि हम भी इतनी तैयारी करके आए और ये साथ वाला जी मोबाइल से देख चीटिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एथिक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें एक किस्म की आप कह सकते हैं some kind of disbalance or some kind of problem that arises that creates a conflict. Now for Saudi it is not like that. He's very much clear about what is wrong and what is right. जो भी stories हम सादी की book से पढ़ेंगे, you'll see that he is referring to all of those in one or another. ठीक है? And this work, which is Rose Garden is the English name of the book, is cherished, accepted, and read worldwide for its timeless relevance and refined style. Of course, अच्छाई को preach करना, अच्छाई हमेशा से ही important रही है, अच्छाई हमेशा से ही first place पे रही है. तो whatever he's trying to teach in the book has always been prioritized by people over the years. Okay, then we have the introduction to the poet whose real name was Musli al-Din Sadi, but he is more likely to be known as Sheikh Sadi or Sadi of Shiraz, or he was part of this Shirazi group of poets. He's a Persian poet. He wrote most of his books, and this book is well in Persian language, and then later on it was translated into many other languages for the world to know what's happening in it. Next, we have his literary position. Now, if we talk about his literary position, he definitely held a famous position among the others. He was one of the major writers, a pioneer who started writing. He did belong to the Shirazi poets, like I've told you. There were other poets who were co-joined by this group, Shirazi group, and he had a distinctive style as well. Now, meaning of Gulistan simply means there is a garden which is full of roses, red roses and other roses, and Saadi definitely enjoys the company of nature. He believes that all these roses, they have something to offer, they have some refreshment to offer, they have some, symbolic meaning and understanding to offer. And he symbolizes these roses with wisdom. Now, there is also color imagery, there is also flower imagery, there is extended metaphors and similes within the text. Once we start reading the text, you will definitely understand. One of the prominent ways, or we can say upper hand, that Sheikh Sadi had was due to his long, prolonged life. He lived more than 100 years. His age was just a number, and longevity has always been associated with it. Since he had so many years on the face of the earth, so he had many experiences that made him a very experienced, critical, and important part of Persian literature, and then later on world literature. He's always been taught in world literature. World literature basically discusses about people across the world who have made some changes, major changes in the people. So he's no different. He had years of experiences to pour, and he did through his write-up. उसने अपने write-up में
सारे experiences दर्ज किए for people to follow. Other than that, he lived a certain way. He had a life of a hermitage. Hermitage is usually somebody who has lived a secluded or bachelorette life. He never took a wife, he never had children. He did not want to get into the materialistic possessive or possessions of the world. He loved seclusions and loneliness to contemplate on his experiences and then to disseminate among masses. Other than that, he was a religious person. He definitely believed in one God and he had religious contemplations all along. So, this journey that he takes us through is a physiological, psychological, religious, and psychological journey that also includes a spiritual and religious elevation, is included in all of these stories that we are going to study. Now, the rose garden he keeps on referring to is an actual rose garden that is in the backyard of Sheikh Sadi's place where he used to live. He used to sit by the window and then within the garden to enjoy the scenery and greenery and the beauty of nature. And the book's name, the Gulistan-e Sadi or Rose Garden, has been inspired by the real garden that he has always witnessed. Then, of course, firstly, there was this oral tradition going on, oration was going on, which means the stories were told in oral form earlier to the visitors. People used to come visit the gardens and they used to enjoy it. Later, it was recorded in the written form. They started in capturing all this information in written form. So it moved from orality to the written form. Written forms are more reliable because they are able to capture the important information that may get lost when oration is taking place. जब एक शख्स verbally एक कहानी किसी जैसे मैं अभी आपको 5 लोगों को एक लाइन में if I place you in a line and if I tell something in the ear of the first person, by the fifth person वो जो information है या line है या story है वो काफी हद तक चेंज हो सकती है उसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती है उसमें इंफॉर्मेशन ओमिट हो सकती है बिकॉज ओरेशन के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं बट जो रिटन फॉर्म होती है it has the ability to be retained for a long time. It has the capacity and the beauty of being retained and recorded and preserved in the same manner. And you might have seen that in your textbooks even there are certain textbooks who have multiple editions. For example, edition 7, edition 10. आपकी बहुत सारी जो accounts and finance की books होंगी उसके बहुत सारे editions होंगे जो आप follow कर रहे हो तो वो इस तरह से भी change होता रहता है ठीक है other than that then we have metaphors and similes within the stories and he talks about that wisdom is something or intellect is something or intellectual involvement is something that is a permanent thing right? But flowers, on the contrary, they fade away. So he uses the metaphor of rose to talk about the inevitability of roses to get fade away. देखिए जिंदगी की बात करें इंसान की बात करें खूबसूरती की बात करें और गम की बात करें खुशी की बात करें कुछ भी यूनिवर्सल थीम की बात करें everything that is worldly, everything that is materialistically possessed has an expiry date. उसकी कहीं ना कहीं ending date है, expiry date है, उसने कहीं ना कहीं fade हो जाना है. But wisdom or intellect or courtesy or such feelings, they are some of those things which cannot be bought through money, which cannot be possessed by somebody who is, having a core of an evil person. So wisdom, intellect, and courage is something that lasts forever. And he uses all these themes in his books to talk about the same. Next, we need to talk about how the book has timeless value. Timeless means that it is something that is applicable, understandable, and relatable across the world.
Okay. One of the stories, in one of the stories, he talks about the kindness and goodness of heart. That if you're kind, kindness will be repaid in one way or another. And that is something that I believe that people across the world believe. कहीं भी रशिया चले जाए, ईरान चले जाए, यूएसए चले जाए, गल्फ कंट्रीज चले जाए, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं भी चले जाए, all of the people, even if they belong to different religions, different societies, different customs and traditions, they do believe in humanity. They do believe in goodness of heart. They do believe in how if we do good, we have good. So all the stories in Gulistane-e-Saadi or Rose Garden, they have the capacity to be um, timeless. They have the capacity to be universal in nature, and they are always still ready to be read today. They are appreciated till this day. Other than that, if we talk about Rose Garden by Sheikh Sadi, it is written in anecdotes and it is written in poetic forms and maxims. Anecdotes, like I've told you, are personal experiences. Now, these personal experiences could be related to exactly the poet himself, and then these personal experiences can be inspired or taken from others as well, जैसे कोई famous writers हो, philosophers हो, because जो शेख सादी है, he is also a philosopher, so he was well read in philosophy. उसके अलावा, if we talk about poems, you understand that poetic form is lyrical form mostly. It has beautification in it, and then maxims are there. Now, these maxims could be understood as general truths. Sometimes these are the principles of morality. यानी कोई भी यादगार या मेमोरेबल डेक्लेरेशन और एक्सपीरियंस या स्टेटमेंट को आप मैक्सिम कह सकते हैं. ठीक है, मैक्सिम्स काफी टाइप्स के होते हैं, फिलोसफिकल हो सकते हैं, और मैक्सिम्स को यू कैन अंडरस्टैंड बाय अ प्रोवर्ब एज वेल. सम ऑफ द प्रोवर्ब्स जो आपने सुने होंगे, जैसे कहते हैं ना कि इफ इट इज नॉट ब्रोकन देन डोंट फिक्स इट. ठीक है, या आपने सुना होगा एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. दीज आर मैक्सिम्स. ठीक है, इनको प्रोवर्ब्स भी कहते हैं. आई थिंक दे आर आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, सेइंग्स भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नेम्स इनके लिए अवेलेबल होते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको, यानी मैक्सिम्स जिसको हम कहते हैं, स्टोरी में आपको टाइम एंड अगेन मिलने वाली. देयर आर मेनी स्टोरीज within the 8 chapters. Each chapter has more than 20 stories. Okay, like I told you that he was from a religious family, and the basis of his write-up is not only personal, anecdotal, or poetic, or you can say based on maxims. It is also based on his religious foundations. He had deep faith in religion. He believed in the light of religion, and he was very much, his morality was very much centered within his faith system, within his religious understanding. Other than that, he believed in Sufic pantheism. What is Sufi? Who is a Sufi? Sufi is somebody who gives up. Now, there are many ways to, understand Sufism or Sufi. ठीक है, अगर आप एक जनरल वे में सूफी का मतलब समझना चाहें, तो he is a person who has uh, let go of materialistic possessions, and they have a direct connection to their religion, their spiritualism, and they are just focused on purification and purgification. Purification of soul, purification of their intentions. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस ही हैं, हमें हमारे माइंड में इविल इंटेंशंस भी आती हैं, गलत इंटेंशंस भी आती हैं, बहुत सारी इंटेंशंस होती हैं. तो जो सूफीज होते हैं, ये इनको डिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो इनको अपने दिमाग से बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट. और हमारा जो पोएट है वो एक सूफी है, उसको एक सूफीस या यू कैन से पेंथिज्म से डेफिनेटली एसोसिएट किया जाता है. इसको आई थिंक यूनिटी ऑफ बीइंग कहा जा सकता है.
वजूद से related होता है, right? And it's a concept, it's a philosophical concept where they believe that there is only one God who truly exists, and all other creations on the face of the earth is a rare or merely manifestation or a reflection of his divine attributes. ठीक है, तो वो separate existence में नहीं, unification एक वजूद में, जैसे we believe in one God उस तरह में believe करता है. And he also believes in spiritual freedom. Remember that there is a difference between religion या रिलीजियसली डिसिप्लिन होने में और स्पिरिचुअल होने में फर्क है. Spiritualism is when you're seeking truth, when you're looking for meaning. That does not necessarily lead you to some sort of religion. It can lead you to atheism as well. यानी आपको atheist भी बना सकता है या आपको multiple good deeds. अब देखिए कोई भी रिलीजन कोई भी गलत काम करने को, झूठ बोलने को, कत्ल करने को, अब्यूज करने को नहीं बोलेगा. ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो इस तरह की कोई बात करने को कहेगा, राइट? लेकिन जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, सोसाइटल प्रैक्टिसेस जिन्हें कहा जा सकता है, वो क्वेश्चनेबल है. वो हर सोसाइटी में है. फॉर एग्जांपल, yesterday I had a class with another class. We were talking about Chinua Achebe's The Things Fall Apart. He's a Nigerian writer, and he talks about a certain groups within his society. अफ्रीका के दो ट्राइब्स की वो बात करता है, यूरोप्स या यूरोसब्स इनको कहते हैं, और आइबो सोसाइटी. And he talks about that how Ibo society is well read, educated, sophisticated, but then again, on the contrary, they are superstitious as well. And then they believe in slavery, they believe in rape, they believe in cutting young children into pieces and throwing them into, rivers for sacrificial purposes. तो बहुत सारी जो उनकी ट्रेडिशंस थे वो बहुत ही क्वेश्चनेबल, बारबैरिक, या आप उन्हें कह सकते हैं जालिमाना थे. लेकिन उनके दो एस्पेक्ट्स हैं इन कल्चर्स को स्टडी करने के. डबल दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. अब उसी एस्पेक्ट में जो मेन लीडर होता है कॉन्कू, जो कि एक एग्रेसिव मैन है, उसका जो बेटा है वो आइबू सोसाइटी को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि when Christianity came into being, to their place of course, it brought peace. It brought some acceptance level that even if somebody has made a mistake, they can repent. यानी उन्हें माफी मिल सकती है. लेकिन आईबी सोसाइटी में अगर कोई रिलीजन नहीं भी था, लेकिन जो कल्चरल वैल्यूज थी, सोसाइटल वैल्यूज थी, उसमें यही था कि बस मार धाड़ होगी. किसी से कोई गलती हो गई है उसका हाथ काट देना है, उसको एग्जाइल में भेज देना है. किसी से मर्डर हो गया है तो उसकी बेटी या बेटा उठा के ले जाना है और उसको इनस्लेव कर लेना है. यानी बहुत बारबैरिक तरीके थे. तो जब इस करेक्टर को एक और वे मिला कि एक ऐसा रिलीजन भी है जो इन बारबेरिज्म में बिलीव नहीं करता, तो वो कन्वर्ट हो जाता है. तो ये उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है कि उसको जिस चीज में इजी फील हुआ वो उस तरफ कन्वर्ट हो गया. तो हमारा जो पोएट है, हमारा जो राइटर है, शेख सादी, सादी ऑफ शिराजी, वो भी इन्हीं इंस्टेंसेस, virtues, vices और experiences की बात करता है throughout his book. Then there is another writer that is Hafiz, जिसके साथ हमेशा शेख सादी को कंपेयर किया जाता है. Hafiz is very joyful. He talks about the lively or very current issues. However, Sadi was and is always considered to be wiser. The book and Sheikh Saudi, they are the pillars of humanity. They can be considered to be the guide of humanity. They can be a moral compass. यानी उन्होंने अपनी बुक में जो कुछ लिखा, that was important. As far as his education is concerned, he was disciplined in Islam. He had exposure to Quranic studies as well. And then he shifted from strict Islam to Sufism as well. He had a spiritual journey. He had a spiritual involvement from one point to another. Then he had the exposure of worldwide travels as well. He
had cultural learning. देखें अगर for example I've not been outside Pakistan at all. Whatever I share, whatever I know through books, professors, or the material that I've read. Okay? लेकिन I've met so many people who have been to China, Japan, Gulf countries, European countries, England, etc., etc. They come back and then they share their experiences. अब वो जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं और जो इंस्टेंसेस मैं आपसे शेयर करती हूँ वो मैं इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर रखी है डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ने के बाद लोगों से बात करने के बाद लेकिन जो शेख सादी है बिकॉज ही हैड ट्रेवल्ड सो मच सो ही डिड अंडरस्टैंड मल्टीपल cultures and their limitations. Cultures are very complicated. किसी भी सोसाइटी का जो कल्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो देखिए बहुत लिमिटेड भी है और वो बहुत वास्ट भी है इट हैज सो मेनी शेड्स कि बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे पाकिस्तान इज अ मल्टी कल्चर्ड सोसाइटी इसमें इतने सारे कल्चर्स हैं और विद इन ईच कल्चर इतनी वेरिएशन है आप कभी वहां गए होंगे ना ये जो हेरिटेज साइट है जहाँ पे हाँ जहाँ लोक विरसा लगता है आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस तो लोक विरसा में आपने देखा होगा कि उन्होंने 5 से 6 पेविलियंस बना रखे हैं सिंध पंजाब बलोचिस्तान KPK Gilgit Kashmir and then probably they've added another one but I don't know which one is it तो ये जो डिफरेंसेस है अब देखिए वहां पे भी अब जैसे मुझे जितना पता है लिमिटेड नॉलेज दैट आई हैड और आई हैव दैट पश्तो इवन हैज सो मेनी वेरिएशंस अवेलेबल हम जैसे जैसे लोकेलिटी चेंज करते हैं पश्तो की वेरिएशन चेंज होती जाती है पंजाबी की बात करें तो पहाड़ी पंजाबी बहुत डिफिकल्ट है ठीक है लेकिन लाहौरी पंजाबी शायद समझ आना आसान है फैसलाबाद में जो वेरिएशन ऑफ पंजाबी बोली जाती है दैट इज टोटली डिफरेंट एंड इफ यू मूव पास्ट इट यू गो टू खुशाब सुरखी और सच प्लेसेस जो जिला और डिस्ट्रिक्ट और छोटे शहर हैं वहां पर पंजाबी की वेरिएशन बहुत डिफरेंट है और उनकी कल्चरल वैल्यूज यानी वर्ड से लैंग्वेज से भी जो वो चीजें एसोसिएट करते हैं दे आल्सो चेंज दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू इवॉल्व फॉर एग्जांपल पंजाबी में एक वर्ड है that's Shodi. Do any one of you know the meaning of this word, Shodi? शोधी मीन जैसे हम कहते हैं कि वो शोधा या बंदा Yes, but what does it mean? हम कहते हैं शोधा जया पंजाबी में कहते हैं लेकिन इसका क्या मीनिंग क्या है क्या लगता है इसका क्या मीनिंग बनता है we call it dumb over ma'am over yes sometimes we call somebody who is like overly over smart करने की कोशिश करे किसी सिचुएशन को हम उसे शोधा कहते हैं that is one meaning of shodhi ठीक है the other meaning of shodhi is somebody who is a miser मतलब कंजूस है जो चीजें शेयर करने में कंजूस है खाना शेयर करने में कंजूस है अच्छा one of my students who speaks Shina language that is a language from Gilgit-Baltistan he told me उसके part of the world में shodhi बंदर को कहते हैं ये language में shodhi is used for an animal ठीक है अब जैसे लाहौर चले तो शोधी उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है शोधों की तरह खाता है लाइक ओवरली ग्रीडी है ठीक है और खुशाब या सुरखी आप चले जाएं तो शोधा वो इंसान है जिसके पास पैसों की कमी है जो who has been left behind by the society or the financial matters so you see this is one word being used across Pakistan in different manners, in different contexts, with different meanings. And there is a high possibility कि किसी और लैंग्वेज में रशियन में डच में किसी भी हिस्पैनिक लैंग्वेज में हो सकता है इसका कोई और मीनिंग भी हो ठीक है तो कल्चरल डिफरेंसेस इस तरह से भी रियलाइज हो सकते हैं then what I am trying to share with you is that certain instances certain phrases words and even actions and reactions could be seen differently could be accepted rejected differently in different places जैसे eye contact बनाना पाकिस्तान में is fine we can make eye contact that is not considered disrespectful or मैं ogling की बात नहीं कर रही gazing की बात घूरने की बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ
कि जब हम किसी से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो हम आई कांटेक्ट बनाते हैं, राइट? लेकिन और हम अपने एल्डरली लोगों से भी मतलब हमारे नाना दादा अबू अम्मी जो भी हमारे बड़े हैं उनसे भी आई कांटेक्ट बना लेते हैं। लेकिन चाइना, जापान और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो एल्डरली हैं, आपके जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनसे सर झुका के बात करते हैं, आई कांटेक्ट बनाकर बात नहीं करते। ये उनकी कल्चरल अपब्रिंगिंग है। अब हम हाथ मिलाते हैं, बॉयज जो है वो गले मिल लेते हैं, ठीक है, दैट इज हाउ वी ग्रीट ईच अदर, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर हम इंडिया चले जाए तो वो नमस्ते करते हैं, वो हाथ जोड़ के बात करते हैं। चाइना जापान में जो है वो थोड़ा सा बाव करके बात की जाती है। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रीट। अब ये कल्चरल डिफरेंसेस है, इसमें ना तो कोई करेक्ट है ना ही कोई इनकरेक्ट है, सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे रिसेंटली आई सीन दैट देयर आर सो मेनी यंग चिल्ड्रन जो कहते हैं कि जब कौमी तराना हो तो खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें कोई डिबेट नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ डिफरेंसेस बता रही हूँ कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ योर एज, अ लिटिल यंगर, चले स्कूल लाइफ की बात करते हैं, हमारे टीचर कहते थे नहीं खड़ा होना ही होना है। बट देन अ डिबेट स्टार्टेड कि वी शुड ओनली स्टैंड अप फॉर वेरी प्रोमिनेंट पोजीशंस, यानी हम किसी चीज के सामने इस तरह से हमें खड़े होकर बाव करने की जरूरत नहीं है, सर झुकाने की जरूरत नहीं। इसमें एक इस्लामिक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं, शेख सादी इनको बहुत अच्छे से समझता था क्योंकि एशिया वाइड उसने ट्रेवल कर रखा था। अभी जब उनकी आप स्टोरीज पढ़ेंगे, आई विल ओनली बी एबल टू टॉक अबाउट लाइक 7 to 10 stories. The rest you can read at your own, of course, and you should, so that you are ready for the examination. अच्छा, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है शेख सादी से तो वो ओपन एंडेड भी हो सकता है, जिसमें आपको कहा जाए विच इज योर फेवरेट स्टोरी एंड व्हाई, डिस्कस इन डिटेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको 5-6 स्टोरीज पता है तो आप उसमें से एक या दो उसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, then they've mentioned that where he went to India, Syria, Arabia, and there are other places as well. But the book that I've shared, James Ross's, उसमें यही थी mention की गई है. So he was well versed. As far as his hardships are concerned, he suffered a lot. He saw slavery. He saw humans in indignified ways. He also fought for human rights. So उसने अपनी जो आवाज उठाई for multiple purposes. And eventually, when he was old enough where he could no longer travel a lot, by his old age, he returned and he compiled his experiences sitting by this rose garden. वो सारे experiences जो उसने सारे अपने youth में, अपने travels में experience किए, उनको in the form of poem, anecdotes और maxims and proverbs उसने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। और रिमेम्बर कि वो 100 years प्लस का था, उसने वो सारे एक्सपीरियंसेस इसमें ऐड करने की कोशिश की। I've already told you that the book has moral themes, universal themes, and there are 8 chapters. Each chapter has a name as well. अच्छा, each chapter has prose style. Prose क्या होता है? जो कि poetry से different होता है. Prose is written in statement form, in sentences form. Poetry is usually written in rhythmic and lyrical form. इसमें जैसे आप कहते हैं ना, काफिया रदीफ हो सकते हैं, सिमिलर साउंड हो सकते हैं, रेपिटेटिव साउंड हो सकते हैं। लेकिन इसका जो चैप्टर है, शुरुआत जो है वो प्रोज स्टाइल में है, कहानी के स्टाइल में है, एस्से के स्टाइल में है, और जो एंडिंग है वो पोएटिक फॉर्म में है। Now this is the chapter 1, which is called Customs of Kings. It focuses on justice and wisdom. Now justice and wisdom, both of them, they have become debatable over the years. ठीक है, justice क्या है? जैसे पाकिस्तान में I've heard so many people, I've come across so many research articles and statements by people that justice is only served to wealthy people. Justice is not meant for the peasants or people living, uh, in the poverty line. इन सब के लिए justice नहीं है, justice prevail नहीं करता है. Do you agree? क्या आपको लगता है हमारे माशरे में जस्टिस सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा और पावर है? Yes, ma'am, exactly. ठीक है,
मैंने बहुत ही हार्डली है कि कभी किसी स्टूडेंट या किसी कॉलीग ने बोला हो कि नहीं जस्टिस मिल भी जाता है। आई मीन इवन किताबों में भी नहीं मैंने पढ़ा कि किसी गरीब को, किसी हम्बल बैकग्राउंड के शख्स को जस्टिस मिले। और अगर उसको जस्टिस मिलेगा तो वो एक रिवेंज प्लॉट होगा, उसमें वो अब्रॉड चला जाएगा, वहां से बहुत अमीर होके खुद एक गैंगस्टर बनकर वापस आएगा तो उसको जस्टिस मिलेगा। सीधे रास्ते से कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे करेक्टर्स हैं लिटरेचर में भी और रियलिटी में भी जिसको कहीं जस्टिस मिल जाए। जैसे yesterday I watched a CCTV कैमरा फुटेज जो कि रोम अराउंड कर रही थी इंटरनेट पे। एक लड़की है बुरके में, शी इज वर्किंग समबडी, एक लड़का एक आदमी आता है और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता है। अब वहां क्या होता है कि वो जो लड़की है शी रन्स आफ्टर दैट मैन एंड शी somehow gets some help from the other men of the vicinity जहां पे भी वो थे। वो जो आदमी है उस आदमी को पकड़ लेते हैं और जो लड़की है वो वहीं पर उसको जूतों से मारना शुरू कर देती है। तो नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, नो डिलेज, नो कोर्ट डेट्स, नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो फ्रस्ट्रेटेड वॉइस है कमेंटेटर्स की, आई जेन्युइनली लव्ड दैट सिचुएशन, मुझे पसंद आई। लेकिन एक तरीका भी होता, लेकिन नीचे जो कमेंट्स थे वो उस तरह से क्यों किए जा रहे थे? क्योंकि बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम लोग गलत काम करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ आदमी नहीं करते, औरतें भी करती है, ठीक है, और कोर्ट डेट्स मिलती चली जाती है, चलती चली जाती है और सालों केस चलता है। और एक केस ऐसा भी था बेटे कि किसी ने 20 रुपए की, पता नहीं 2 रुपए की चोरी की थी और उसको 30 ईयर्स अंदर रखा क्योंकि उसके पास 2 रुपए पे बैक करने का टाइम नहीं था। उसको किसी ने बेल नहीं करवाई, कोई उसको लॉयर नहीं मिला या जो भी, इवेंचुअली ही वाज लेट गो क्योंकि हिज फाइल गॉट लॉस्ट। यानी इन बिटवीन अब कोई फाइल ही नहीं रही तो 2 रुपए के लिए उसको क्या रखना, जगह खाली करनी है तो उसे जाने दो। लेकिन उसके 30 साल तो जाया हो गए ना। तो इस तरह का जस्टिस सिस्टम कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। तो जस्टिस एंड विजडम इज समथिंग दैट डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है इसकी कमी है। मेरे खुद में कमी है, मैं किसी को क्या कहूँ, ना जस्टिस है इतना, ना विजडम है। आई एम स्टिल ट्राइंग एवरी डे, but collectively as a nation I believe we do definitely lack a lot of it. तो स्टोरीज के थ्रू, एनेक्डोट्स के थ्रू जो पोएट है हमारा वो हमें ये बताने की कोशिश करता है, ठीक है। चैप्टर में आई थिंक 40+ स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो ये बात करता है। दिस चैप्टर focuses on justice, leadership, and wisdom. One of the stories shows a king sparing a captive because mercy is wiser than cruelty. ठीक है, उसमें वो एक स्टेटमेंट भी देता है, ये पहली ही स्टोरी है तो मैं आपके साथ अभी पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा। गुड रूलर्स वैल्यू कंपैशन। देखिए हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर्स हैं, किंग्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि बहुत सारे रीजंस की वजह से जाने जाते हैं। डू यू नो समथिंग अबाउट हिटलर? अभी सुना है हिटलर कौन है? या नेपोलियन के बारे में सुना हो, विंस्टन चर्चिल के बारे में सुना हो, और कौन इम्पोर्टेंट है, जियाउल हक के बारे में सुना हो? किसी को भी नहीं जानते? महात्मा गांधी, कायदे आजम, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, इनमें से किसी को जानते हैं, कभी सुना हो? लियाकत अली खान, अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में सुना हो, इमरान खान, सर आसिफ अली जरदारी, इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं सुना आप लोगों ने? हम इन सब को जानते हैं, सब के बारे में सुने हैं। ठीक है, so if I say, if you would like to pick one of them and attribute some kind of quality with them, how would you do it? For example, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक पिक कर लेती हूँ इस लिस्ट में से, जियाउल हक, और साथ में इसके साथ यूज करूंगी इस्लामोफोबिया। ठीक है, आपको पता होगा इस्लाम, चलिए इस्लामोफोबिया रहने दे, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, इस्लामाइजेशन यूज कर लेते हैं। जियाउल हक, which was one of the dictators of our history, or Islamization. Do you know what I'm saying? Do you understand the context? Yes, ma'am.
What is the context? Would you like to elaborate a little for the rest of the students to understand? मैम ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन जो है पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें जो है आई थिंक सो टीवी चैनल्स पे सबसे पहले जो फीमेल्स थी उनका जो क्या कहते हैं न्यूज़ पे आना वो बंद किया था, वो बैन हो गया था। और गाने वगैरह बंद हुए थे, जो पब्लिक प्लेसेस पे अगर रमज़ान हो तो उसमें गाना वगैरह बंद कराया था कि रमज़ान के वक्त में कोई भी किसी के सामने अगर कोई बीमार भी हो और उसने रोज़ा ना रखा हो तो वो किसी के सामने गाना नहीं गाएगा। इस टाइप की कोई डिक्लेरेशंस हुई थी इसमें। So, yes, that's absolutely right. When Ziaul Haq came into power, he made sure that there is a strict regime to be followed in terms of Islamization, in terms of our religion Islam, because we took Pakistan in the name of religion. So he wanted to reform, but he also had some personal gains to get out of it. There was these brochures and pamphlets. जब भी वोटिंग हुआ करती थी, यानी ये जो प्रेसिडेंशियल वोटिंग होती है, इलेक्शंस हुआ करते थे, तो उनके जो क्या कहते हैं उनको, इन पेजेस को क्या कहते हैं जिसमें हम बेटे मोहर लगाते हैं जाके वोट करते हैं ना, दे आर कॉल्ड समथिंग। वोटिंग वोटिंग बूथ बूथ में। में जब, हाँ जी, जब हम इसमें जाते हैं तो हमें एक पेज दिया जाता है, उसमें हमारा जो कैंडिडेट होता है उसका सिंबल होता है और उसका नाम दिया होता है। अब आई फॉरगॉट द नेम, इस पेज को क्या कहते हैं बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा। खैर, तो जिया क्या करता था, जिया के ब्रोशर में या पम्फलेट में या उसके नाम के सामने लिखा होता था कि अगर तुम काफिर नहीं हो तो मुझे वोट करो, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो मुझे वोट करो, इफ यू वोंट वोट फॉर मी यू विल बिकम अ काफिर। वो इस तरह से इस्लाम को अपने बेनिफिट के लिए भी यूज करता था। एंड यू वेरी मच राइट, he banned the women newscasters to come on screen without the dupatta on their heads. उन्होंने पूरी तरह बंद नहीं किया था, उन्होंने कहा आपने आना है टीवी पे तो आप दुपट्टा लेकर आएंगे, आपको कवर करके आना है। I remember there was this lady newscaster. She refused. She was one of the most cherished female newscasters of PTV, I believe. और उसने कहा कि जी आई विल नॉट टेक दिस डिक्टेटरशिप एंड आई विल रिजाइन, एंड शी डिड। और जैसे ही जियाउल हक का regime एंड हुआ, शी केम बैक। बट देन देयर आर पीपल जो कहते हैं कि इस्लामाइजेशन यानी जियाउल हक ने जो किया उससे उनकी लाइफ पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, यानी दे वर स्टिल लिविंग इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, कराची और बड़े शहरों में रहते थे। उन्होंने वही फ्लैपर पहने। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जियाउल हक के टाइम पर और उससे पहले दुपट्टा नहीं था, बेटा बुर्का नहीं था। इफ यू, मतलब लोग लेते होंगे लेकिन जो पिक्चर्स हमारे पास हिस्टोरिकल पिक्चर्स है उसमें लड़कियों ने बेल बॉटम्स पहने हुए, स्लीवलेस पहने हुए, वेस्टर्न क्लोथिंग कर रखी है, बाल इस तरह के रख रखे हैं जो अंग्रेज रखते हैं। बहुत सारा डिफरेंस आपको नजर आएगा। इवन द बॉयज, दे वर वेयरिंग बेल बॉटम्स, टाइट जीन्स कसकर, बड़ी उनकी जो क्लोथिंग है वो डिफरेंट है। उनके जो बाल है, आजकल के बच्चों के बाल तो बड़े ही डिफरेंट तरीके से कटे होते हैं, लेकिन उस टाइम के जो बच्चे या पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो वो जो अंग्रेजी फिल्मों के विलन्स नहीं होते थे पुराने वाले, उस तरह की उनकी हेयर कटिंग हुआ करती थी। उसके बाद इस्लामाइजेशन के नाम पे उन्होंने टीवी पर जो शोज आते थे, उन्होंने कहा कि अगर एक मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर दिखाना है, इफ दे आर टू बी सीन टुगेदर, दे कैन नॉट बी सीन इन अ बेडरूम, दे कैन नॉट बी सीन very close to each other. They have to have a distance of at least um, 6 feet apart or maybe 12 feet apart. ये आप विशद डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो उस वक्त हमारे पास सिनेमेटोग्राफी के लिए इतने इक्विपमेंट्स ही नहीं होते थे, तो ड्रामेटाइजेशन, सिनेमेटोग्राफेशन बहुत मुश्किल हो गई थी। यानी ये सारी चीजें, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत बड़ा ब्लो मिला था क्योंकि वो करना मुश्किल हो गया था। लड़के लड़कियों का इकट्ठा मिलना मुश्किल था, सिनेमा में जाना मुश्किल, बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, रोकने की कोशिश की। आपको देखिए, मुझे इतना सा पता है, लेकिन जियाउल हक ने बहुत कुछ ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत अच्छा भी किया, लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, दोनों बातें। लेकिन मैं आपको सिर्फ जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो स्टेट करके बता रही हूँ। अब उसको अच्छे वर्ड्स में, मोस्टली अगर आप कोई भी बुक खोलें, बहुत अच्छे वर्ड्स में सराहा नहीं जाता, बिकॉज ही
hurt our international image on such a extent that we have not been able to recover from it. इंटरनेशनल प्रेजेंस समझते हैं कि बाहर के मुल्क वाले हमें क्या समझते हैं, कि हमें कैसे परसीव करते हैं, हमारी ग्लोबल इमेज को बहुत डैमेज किया गया और वो डैमेज नैरेटिव सच हो गए. हो सकता है ज़ियादत में इतनी कोई सख्ती ना भी की हो, लेकिन जो ये नरेशन सेट हुई, जो फ्रेमिंग हुई, जो लेबलिंग हुई, उसने हमारी जो आउटलुक है उसको पसमानदा दिखाया, नैरो माइंडेड दिखाया, सैवेजेस भी कहा जाता था हमें, इलिटरेट और पता नहीं क्या क्या बहुत गलत वर्ड्स हमारे लिए यूज किए जाने लगे. ठीक है. अब अगर आपको हिटलर के बारे में पता हो, हिटलर वाज absolutely against Jews and concentration camps में there is this incident that has been recorded in the history कि उसने कंटेनर्स में और कंसंट्रेशन कैंप्स में ज्यूज को बंद किया और उनको जिंदा जला दिया और बैठ के वहां उन्हें देखा मरते हुए. और एक स्टेटमेंट भी दी गई है कहीं पे कि उसने कहा कि इफ यू लेट वन Jew live, the entire world with you know regret it for the rest of their life. तो उसका प्रोरोगेटिव, उसके पीछे भी ऑफ कोर्स एक इंटेंशन थी. हमें तो सुपरफिशियली पता है ना कि उसने ऐसा कुछ किया, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडास थे उसमें, उसमें पर्सनल गेन्स थे, उसमें ट्रिब्यूनल गेन्स थे, तो हर चीज के पीछे एजेंडास होते हैं. लेकिन शेख सादी जो हमें स्टोरी सुनाएगा उसमें वो कहता है कि मर्सी इज ऑलवेज more captivating and more wise, more just as compared to cruelty. Good rulers value compassion. Compassion is sympathy. अगर ज़ियाउल हक या विंस्टन चर्चिल या ये हमारा जो ये है हिटलर ये sympathy और compassion दिखाते तो there could have been other ways to bring Islam to eradicate the madness of Jews और जो irrationality थी Jews की उसको खत्म करने के शायद और भी तरीके हो सकते थे. उन्हें जिंदा जला देना could not have been the only answer. Aggression को aggression से मारना is not sound. ना वो religiously sound है, ना ही वो psychologically sound है, ना ही वो emotionally sound है. तो possibilities हो सकती थी. तो हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि अगर हम एग्रीवेट करें, यानी अगर हम escalate करें किसी सिचुएशन को, तो वो बैकफायर कर सकती है. For example, if you had met me 10 years ago, I was not that क्या कहना चाहिए accommodating या इतनी पेशेंस नहीं थी मेरे में. ठीक है. Eventually, I've taught for more than 12 years now. बहुत सारी पेशेंस, अभी भी इम्पेशेंट तो मैं हूँ, लेकिन बहुत सारी पेशेंस डेवलप हो गई है. ये क्यों होता है? एक्सपीरियंसेस से होता है. ये क्यों होता है? When I meet so many people on daily basis, I understand that everybody is going through something, everybody is feeling something, and we need to find a mutual ground or a common ground to be able to communicate with each other. Yes, हो सकता है उसको मेरी ना समझ आ रही हो, मुझे उनकी ना समझ. स्पेसिफिकली ये जो स्टूडेंट टीचर का जो एक रिलेशन है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि स्टूडेंट आजकल का सिर्फ टीचर को उसी हद तक पसंद करता है या रिस्पेक्ट करता है अगर वो खुले नंबर के थे. उसके अलावा वो टीचर को कुछ समझने में इंटरेस्टेड नहीं है, which is of course उनका प्रेरोगेटिव है. On the contrary, ऐसे टीचर्स भी हैं जो बहुत अनरीजनेबल भी हैं, ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि मतलब कुछ ऐसा पर्सनल कमेंट कर देंगे, गलत बयानी कर देंगे, ग्रजेस रख लेंगे. बिल्कुल है, इट्स टू साइडेड. मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ओवर द इयर्स मैंने देखा है. लेकिन आई स्टिल बिलीव इन कंपैशन. I still believe in finding a mutual ground to come to an understanding. अगर बच्चे से मिस्टेक हो जाए, मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं उसको म्यूचुअली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. लेकिन स्टूडेंट्स ने ऐसे इंसिडेंसेस भी सॉर्ट किए हैं कि अगर टीचर से गलती हो जाए तो वो कभी आगे कंपनसेट नहीं कर रहा, अपोलोजाइज नहीं कर रहा या एडमिट नहीं कर रहा, क्योंकि वो टीचर है तो वो उसका फायदा उठा रहा है. तो इस तरह से इंस्टेंसेस भी होते हैं. तो कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आप ऑफ कोर्स यू विल बी, ऑफ कोर्स आप सब यंग हैं अभी, आपने फादर भी बनना है, आप भाई भी हैं, आपने मदर भी बनना है, आप सिस्टर हैं, डॉटर हैं, सन है, अंकल आंट भी होंगे, आप स्टूडेंट भी हैं, आपने अपनी जो वर्क प्लेस डेजिग्नेशन है उसमें भी ढलना, बहुत सारी चीजें करनी है. रिमेंबर टू बी काइंड. Yes, it's very difficult to be kind in these days, in this world at the moment, but compassion goes a long way. Being humble, being
फुल ऑफ इंटेग्रिटी कैन गो अ लॉन्ग वे। कम बोले लेकिन पते का बोले, बैबल मत करें, चीटिंग मत करें, ठीक है। और ओवर स्मार्ट होने की कोशिश ना करें। आजकल के बच्चे ना थोड़े से ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में ना थोड़े से ना परेशान हो जाते हैं और फिर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। स्मार्टनेस इज इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंट होना इम्पोर्टेंट है, मेटिकुलस होना, केयरफुल होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा होना जरूरी नहीं। हर चीज को थ्रू एंड थ्रू सोच कर आगे जाए, ठीक है। तो यही जो अब अभी जो हमने छोटी सी डिस्कशन की है, इसी पर बेस्ड है ये हमारा पूरा पहला चैप्टर। इस तरह की तो हम हर चैप्टर से एक या दो स्टोरीज पढ़ पाएंगे, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं है। Chapter 2 is based on morals of dervishes. I hope you know who's a dervish. Dervish is somebody who gives up materialistic life. दरवेशों को सूफी के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। ये स्पिरिचुअल विजडम में इंटरेस्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल एलिवेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन हम दरवेश का जो कॉन्सेप्ट है जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। अगर एक शख्स बहुत ही सेक्लूडेड, अलग थलग, अलूफ रहता है, कम बोलता है, कम सोशलाइज करता है, तो हम कहते हैं तुम तो दरवेश ही हो गए हो, ठीक है। उसको कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अच्छा दिखने में इंटरेस्ट नहीं है, उसे अच्छा खाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस दे आर जस्ट पासिंग बाय, दे आर जस्ट लिविंग लाइफ, तो हम उसे कहते हैं तुम दरवेश हो गए। लेकिन देयर इज अनदर वे, मे बी वो एक मिनिमलिस्ट है, वो जिंदगी को सादगी में गुजारने में इंटरेस्टेड है। तो दरवेश के भी बहुत सारी मीनिंग है, लेकिन शेख सादी के लिए दरवेश वो इंसान है जिसके जो पैर है वो जमीन पे है, somebody who is down to earth, who has humility, who has humbleness. So in chapter 2, Saudi praises humility and spiritual discipline. Darvish, they represent detachment from the material greed. Moral strength comes from simplicity. There is a statement, a universal statement that most of us probably have already read or heard somewhere, where it is stated that simplicity is the ultimate sophistication. Does any one of you agree with it? Simplicity is the ultimate sophistication. What is sophistication? हम्म। अगर हम किसी को कहेंगे कि वो शख्स बहुत sophisticated है, तो हम किस बेसिस पे कहते हैं? हम कहते हैं ना, व्हाट अ sophisticated young man, व्हाट अ sophisticated lady। क्यों कहते हैं? वैसे क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि he is carrying himself in a very good manners, good personality. He is near to perfect. His body language is very well uh, presented. इस तरह की चीज़ों को sophisticated कहते हैं। हम sophistication को अटैच करते हैं जो हमारा demeanor होता है, एक वर्ड होता है, the way we carry ourselves, the way we speak, the way we take situations, the way we handle situations, accept situations or reject situations. That is there. And then people who are simple, people who do not take everything personally, they are more cherished, they are more strong, and they are more able to detach themselves from these burdens of the others. अब देखिए, लोग जो है, मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा था कि हम सबके अपने अपने मसाइल हैं, सबके ही होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हर मसले को पर्सनली ले जाना शुड नॉट बी समथिंग दैट वी शुड डू। और जो दरवेश हैं वो ऐसी चीजों को पर्सनली नहीं लेते, वो अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश करते हैं। अब एक एग्जांपल है जो कि शायद इस पे फिट नहीं बैठती, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर। आई वर्क विद मेनी institutions and research centers over the years. When I started, तो I used to put my heart, my soul, and my physical being into the work. यानी मुझे उस जगह से ना कोई मतलब प्यार सा ही हो जाता था कि यही मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, मैंने यही काम करना है। But eventually I understood it is just a workplace and I am quickly replaceable and I am just an asset to them. जब तक मैं काम कर सकती हूँ, जब तक मैं productive हूँ, they will cherish me, respect me or accept me. जैसे ही there is some problem, they will definitely replace me. And I got replaced at one place without being informed, by the way.
That was disrespectful. I mean, I should have been given a proper notice कि भाई अब आपका टाइम यहाँ खत्म है, अब आप चले जाए. But I was not told. ये कम से कम 7 या 8 साल 2018 की बात है. So I felt very bad. It made me feel belittled, disrespected, insulted, and all. तो कोई 1 साल या मे बी उससे ज्यादा I held a grudge against them. ठीक है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है जिसकी मैं बात करूं. मुझे फील हुआ कि मैं जी से कोई रिवेंज I'll go and tell them what they did was wrong. But when I found better places to work with, when I found better people to be with, when I found more exposure, more clarity, then I understood कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. If I had been still there, I might have not, grown a little. ठीक है, हो सकता है मेरा एक्सपोजर उतना लिमिटेड रह जाता. तो अब at this point of my life, I'm at ease with it. Yes, the feeling that I felt for that much time is still there. जब भी मैं उसे सोचूंगी, जब भी मैं वहां जाऊंगी, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मुझ में एक्सेप्टेंस आ गई. मैंने अपने आप को उस बर्डन से कहीं ना कहीं हाफ वे थ्रू या 80% डिटैच कर लिया. और जो दरवेश होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. I am no दरवेश. I'm just telling you कि इस तरह के बर्डन्स जो वर्ल्डली बर्डन्स होते हैं उनको लेट गो कर देना दरवेशों की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. और वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम आसानी से we can live by this life. Life is difficult, isn't it? क्या जिंदगी मुश्किल है कि आसान है? आपको क्या लगता है? जिंदगी मुश्किल भी है, जिंदगी आसान भी है, डिपेंड करता है आप जिंदगी को लेके कैसे चलते हैं. Absolutely, very well put. देखिए, अब जैसे उस दौर में यानी 8-9 साल पहले, क्योंकि थोड़ी अपने एक्सपोजर कम था, अकल कम थी, उम्र कम थी, या जो भी रीजंस थे, तो मैंने बड़ा फील किया. अब अगर थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस हो ना, तो आई हैव डेवलप्ड द कैपेसिटी टू वॉक आउट. अगर कोई ज्यादा इंस्टीट्यूशन तंग कर रहा है, वर्क प्लेस मेरे मतलब की नहीं है, तो मैं आसानी से रिजाइन भी कर देती हूँ. जो कि 8-9-10 साल पहले मुझे लगता था, हाँ मैं रिजाइन कैसे करूँ. तो व्हाई शुड नॉट आई प्रेफर माय इनर पीस ओवर दिस वर्ल्डली पोजेशन. पेमेंट इन्होंने भी करनी है तो दूसरे ने भी कर देनी है. कोई अगर 10-15 हजार का फर्क भी है तो इनर पीस को हमेशा तरजीह देनी चाहिए. अब ये मुझे कैसे समझ आया, वो सारा I'll be using a word that is a little informal. तो सब दलालत सहने के बाद I understood कि it's okay. My peace of mind is more important than those mere 10-15 हजार जो एक्स्ट्रा वो मुझे देने में इंटरेस्टेड है. So the third chapter leads to the same point. You see, देखिए पहला चैप्टर था किंग्स के कस्टम्स पे कि वो अगर वाइज हो, जस्ट हो, तो वो कंपैशन शो करे तो दे आर बेटर. सेकंड चैप्टर जो था वो हमारा ह्यूमिलिटी पे बेस्ड. और थर्ड जो है वो इनर पीस और कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन लेवल पे. जैसे जेंजीज है ना, द ओनली not only one of the things that I really love about the Gen Zs, the younger generation, that they do not take too much burden, the emotional burden. They are very much exposed to, उनके पास बहुत exposure है, clarity है, और वो बहुत आसानी से सीख भी जाते हैं, और जहाँ पे इनकन्वीनियंस उनको लगती है वो वॉकआउट भी कर जाते हैं. बीइंग अ मिलेनियल हमें ये बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जेंजीज बहुत आसानी से चीजों को छोड़ देते हैं. ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप्स को छोड़ देना शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ. लेकिन जो जिंदगी की इस तरह की मटीरियलिस्टिक पोजेशंस है जो कि पैसों से रिलेटेड हो, वो आपको बहुत तंग करे, तो जब तक find a new job जैसे ही नहीं मिले पीछे छोड़ देनी चाहिए. Always prioritize your spiritual and inner peace. Now in chapter 3, Sadi tries to teach us that happiness is something that comes from within, that comes from inner peace and contentment, satiation of satisfaction level, and not from the worldly money or wealth. Greed leads to unrest. If we would be looking for so many things, अगर मुझे बहुत कुछ चाहिए तो मैं हमेशा ही अनसेटल्ड और परेशान रहूं. मुझे ये भी चाहिए, मुझे अच्छा घर, पैसे, रिलेशनशिप्स भी चाहिए, जी गाड़ी भी चाहिए, गैजेट्स भी चाहिए, पावर भी चाहिए. मुझे अगर सब कुछ चाहिए तो डेफिनेटली जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी. जैसे आपने कहा कि द वे आई एक्सेप्ट द लाइफ, इट विल ट्रीट मी द सेम वे. इनर पीस इज मोर वैल्यूएबल देन द वर्ल्डली riches. Then we have chapter 4 that talks about that silence is wisdom.
it is connected to wisdoms. और जैसे हमें भी कहा जाता है ना कि खामोशी जो है वो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, उतना ही बोलो, तभी बोलो जब आपका बोलना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। जितना हम साइलेंट रहेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे और ऑब्जर्व भी करेंगे, उतना हमारे पास मोर चांसेस हैं कि हम जो आंसर देंगे वो वैल्यूएबल होगा। अब देखिए, हम दो किस्म या तीन किस्म के लोगों से डेली बेसिस पे मिलते हैं। एक जो अपना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं, पहले आपकी बात सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं। They come across very wise, they come across very reasonable people, and then there are people who are only listening to your questioning or to your point of views to answer you back aggressively. And then there are people who talk to you with mutual understanding, कि वो वन ओ वन आपसे सवाल भी पूछ लेते हैं। इसमें से सबसे अच्छा, लाइक पर्सनली जो मैं बिलीव करती हूँ, मुझे जो ठीक लगता है वो टर्न टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है, दैट लेट द फर्स्ट पर्सन फिनिश। जब उनकी बात हो जाए, कोई बात समझ ना आए, आस्क फॉर क्लैरिटी एंड देन आंसर। दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ विजडम। आपने वो मीम देखी होगी ना, इंटरनेट पे दिखाते हैं कि जिसका दिमाग खाली होता है वो बहुत बोलता ही चला जाता है, और जिसका दिमाग वो पिक्चर में दिखा रहे होते हैं वो कम बोल रहा होता है। डू यू एग्री विद इट? कि जो जो कम अकल है वो ज्यादा बोलेगा, और जो अकलमंद या इंटेलेक्चुअल है वो कम बोलने वाला है। But I mean, in some cases it is right, but if we talk about the people who want to prove his point and he is correct, and the other person did not understand it, so he has to speak a lot. He has to make him understand, to think that he is going to understand him, and he is not understanding because of his little knowledge or something like that. Fair enough, that's correct. Definitely, that it is silence, the kind of silence Sadi is referring to is that sometimes the next person doesn't have the capacity to understand. Then do not waste your words. But if you're talking to an intellectual person or a person who has the capacity to understand, then you should definitely share your point of view in the right way, in the right time. जी बेटे। मैम, एक और पॉइंट भी आ जाता है ना, जो हमने चैप्टर 3 में बात पढ़ी, इनर पीस की। तो इनर पीस के लिए अपने वर्ड जाया करने की जरूरत ही क्या है? साइलेंस ही बेटर ट्रीटमेंट है उनके लिए। उनको पॉइंट प्रूव करके आपने क्या अच्छा ही बन जाना है, बुरा बनना है? अगर आपको कोई बुरा समझता है आपकी साइलेंस की वजह से, तो समझने दे, आपको अपना इनर पीस तो मिल रहा है ना। अगेन वो जो अभी पहला बच्चा था ना जिन्होंने ये बोला था कि इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। फॉर एग्जांपल, फॉर मी टू स्टे साइलेंट इज माय इनर पीस। आई हैव कम टू टर्म्स विद इट, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग मतलब गलत तरीके से बात कर जाते हैं, तो पहले मैं रिएक्ट करती थी, अब मैं नहीं करती, बिकॉज फायदा ही नहीं है ना, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड। लेकिन देन देयर आर पीपल जो बहुत राइटफुली ऐसे लोगों को उनकी राइट प्लेस में भी पुट कर लेते, दे कैन पुट दीस पीपल इनटू देयर राइट प्लेस। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज ठीक है, both of you are correct, but Sadi is of the view मैम, that silence is जब placed. बंदा एच पे आता है, जब बंदा आपको एच पे पुश करता है, तो तभी बंदा वो कहता है कि अब मैंने इसको प्रूव करके दिखाना है, और मैं इसको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा ये बात कि मैं राइट हूँ और वो रॉन्ग है। तो फिर उस टाइम पे बंदा कहता है कि साइलेंस जो है वो बंदे को खत्म कर लेनी चाहिए, और जो पॉइंट है वो क्लियर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, फेयर इनफ। अच्छा, एक और अगेन पर्सनल बात है, आप कहेंगे मैम अपनी बातें करती रहती, लेकिन आई बिलीव दिस माइट मेक सेंस अ लिटिल। व्हेन आई स्टार्टेड, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड आई स्टार्टेड एट नमल, पहले कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़कर आई हूँ मैं। तो जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, फीस ज्यादा थी बेटे, पेमेंट ज्यादा थी, तो दे सेड कि you won't even survive 12 days here. Okay, even if you do the degree in English, what are you going to get out of it? There's nothing waiting for you. उस वक्त मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और टिल डेट आई हैव नॉट गिवन देम एनी रिएक्शन। ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन आई एम क्वाइट फाइन विद व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड सो फार। अब वही शख्स खुद मुझे मतलब they usually talk to me, whenever they talk to me, they tell me, share your journey, how did you manage? Because मैंने अपना MS PhD अपनी जॉब्स खुद फाइनेंस की है, इवेंचुअली मास्टर्स अबू ने करवाया, लेकिन उसके बाद जितनी पढ़ाई की, डिप्लोमास के जो किया, आई फाइनेंस्ड माय सेल्फ। तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट, एटलीस्ट आई कॉल इट एन अचीवमेंट।
तो अब उनको था कि बीइंग अ फीमेल फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम अ फैमिली लाइक माई सेल्फ, हाउ डिड आई मैनेज, कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, उनको मतलब वो बात हजम नहीं हो रही. आई डिड नॉट से एनीथिंग एज इन रिटेलिएशन. The silence I chose was always worth it. Now he is always speaking and I do not say anything. I said just बस ये कहती हूँ कि बस हो गया, मैं चलती गई और काम होता गया. तो वही बंदा, वही शख्स अब उस चीज को क्या कहना चाहिए कि अप्रिशिएट करने में somehow इंटरेस्टेड है कि yes what you did whatever journey you took was worth it. लेकिन वो जो सेंटेंस था बड़ा हार्श वर्ड था. आई वॉज वेरी यंग. आई जस्ट बैचलर्स में बता कितने ही साल का होता है, 18 19 ईयर्स 20 ईयर्स की थी मैं. मैंने 12 दिन भी सर्वाइव नहीं किया, ठीक है. तो लेकिन सर्वाइव मैंने किया, मैंने डिग्री की, डिस्टिंक्शन से की, सब कुछ कर लिया. तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय ओन जर्नी एंड दे कैन सी दैट टू. तो वो जो आप कह रहे हो ना कि साइलेंस समटाइम्स इज वर्थ इट, एंड यस इट इज. कि मेरे एक्शंस ने उनको बता दिया कि जो मैं करना चाहती थी, जिस लेवल में करना चाहती थी वो तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आई रीच्ड समवेयर. तो जो सादी है, he always praised silence as wisdom. Speaking unnecessarily leads to regret. And yes, once the words are out of your mouth, you become their slave. So कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ ऊट पटांग कह दिया तो फिर आप उसके गुलाम हैं, आपको फिर उसको जिंदगी भर लेके चलना है और आपके साथ ही उसने चलना है. तो वो बात ही इसमें आ जाती है. Then Sadi also shows that restraint of speech reflects intelligence. जैसे आप दोनों ने जो पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, वन सेड के sometimes you have to speak in order to put this certain person into their right place when you are at the edge, and you have to bounce back, you have to retaliate, or you have to give your answer, you have to take your stand, you have to take your steadfastness, etc. और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो हम इसको हैंड इन हैंड लेकर चल सकते हैं. देन कम्स दी चैप्टर नंबर 5 दैट फोकसेस ऑन लव एंड यूथ. Okay, love is something that is universal and youth is again a universal thing. When I say universal, I mean to say that it is applicable, understandable across the world. Of course, हमारे जो love languages होते हैं, country wise वो different हो सकते हैं. Unfortunately, yeah, fortunately enough, I watched a Chinese and a Japanese drama because मेरे जो students हैं, मैं literature पढ़ाती हूँ mostly, तो वो ये K dramas, J dramas और कौन से C dramas और ये तुर्किश ड्रामास ये बहुत देखते हैं. उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, तो रेफरेंस देने के लिए आई वॉच्ड वन. अब जो चाइनीज ड्रामास है, दे हैव वन सेट पैटर्न. जापानीज ड्रामास दे हैव वन सेट पैटर्न. तुर्किश ड्रामास दे हैव वन सेट पैटर्न. जैसे हमारे पाकिस्तानी ड्रामास है, हमारे ड्रामों में मोस्टली क्या हो रहा होता है कि एक अमीर लड़का आता है, गुड्डे टाइप का होता है, लड़की उठा के ले जाता है और लड़की को उससे प्यार हो जाता है. विच इज अ वेरी आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू पुट इट, बट बड़ा ही अजीब किस्म का एक लव वो दिखाने की कोशिश करते हैं. अभी एक रिसेंटली एक ड्रामा आया था जिसमें वो सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे थे इन जॉइंट फैमिली सिस्टम. बहुत सारे लोगों को बहुत मसला था उसके साथ, बट इट्स अ रियलिटी. तो रियलिटी हमारी ऑडियंस नहीं देखना चाहती. हमारी ऑडियंस देखना चाहती है ड्रामाज लाइक जिसमें वो हानिया आमिर थी, आई फॉरगॉट द नेम, इन बिलाल अब्बास था, कि जिसमें जो है वो कॉलेज में मिलते हैं. वो भी एक ऑब्सेसिव किस्म का लव था ना. दैट वाज नॉट इवेंचुअली आई थिंक इट टर्न्ड इनटू अ ट्रू लव और समथिंग, लेकिन वो एक ऑब्सेशन ही था ना कि एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की ने भाई मना कर दिया तो वो मना उससे बर्दाश्त नहीं. ये हमें इस तरह की स्टोरीज दिखाई जाती है. चाइनीज ड्रामाज में अगर हाई स्कूल ड्रामाज अगर आप उसको कलेक्टिवली देखें तो जो उनके हाई स्कूल को एजुकेशन होते हैं तो दे फाइंड देयर love in the high school and it goes beyond their expectations and they get married eventually. Japanese dramas में अगर देखें तो अपने customs and traditions पे बहुत focus कर रहे हैं. They are showcasing their customs are very strict. They showcase how many temples. They have so many temples. They have temples for gods, और वो gods जो है बहुत सारे animals पर based भी हैं. तो वो बहुत दिखाते हैं. और जो हमारे ये जो तुर्किश ड्रामाज हैं ये हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, वो भी अपने ट्रेडिशंस पे दिखाते हैं. जैसे इनकी जो शादियां हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से की जाती हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं. इसमें पोजेसिवनेस बहुत है तुर्किश ड्रामों में, मैम शोकेसिंग तुर्किश ड्रामाज में पोजेसिवनेस. जी मैम तुर्किश ड्रामाज में जो आप मैरिज का बता रही हैं तो वो अक्सर जो है यूरोपियन स्टाइल उन्होंने बहुत ज्यादातर फॉलो किया हुआ है. they call Turkey a mini Europe these days. ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें
अडेप्ट नहीं की है, अडॉप्ट कर रही है. दे जस्ट टुक इट एज इट इज. So there are many research articles available. I've seen only some chunks of some dramas. तो उसमें वो traditional weddings दिखा रहे हैं. There was this drama called Salwa या Salma. I don't remember the name of the drama. उसमें ऐसे होता है कि एक लड़की को गांव भेजते हैं और उसकी जबरदस्ती शादी एक आगा से कर देते हैं. आगा जो है वो ट्राइब्यूनल हेड है, यानी वो किसी ट्राइब का हेड है और he has to take certain decisions in order to help his people to in order to gain for his people. अब दोनों की शादी जबरदस्ती होती है, लेकिन बिकॉज ही इज एन आगा वो उसको छोड़ नहीं, वो उसको डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि लोग क्या कहेंगे. तो वो ये जो कल्चरल हेजीमनी है या ये बाउंडनेस है, इस तरह के स्टोरीज वो हमें तुर्किश लिटरेचर में दिखा रहे होते हैं. और कौन सा होता है कोरियन, आई डोंट नो, आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू राइट सी एनी. और हाँ हिंदी, जो हमारी हिंदी लिटरेचर है, हिंदी में आपने देखा ही है कैसी कैसी मूवीज है, वो तो बड़ी फैंटास्टिकल हो जाती है. कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा ही फैंटास्टिकल है. अब जैसे ये जो सैयारा आई थी, आई डिड वॉच इट. अब उसमें ठीक है, फाइन, दिस इज फाइन, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं. तो हर हर जो मैंने आपको अभी कल्चर बताया, इन सब में मैं आपको लव स्टोरीज ही बता रही हूँ, लेकिन इनको शोकेस करने को या इनको दिखाने के लिए उनके अपने अपने तरीके. अब जो ये तुर्किश ड्रामे की हमने बात की, उन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में प्यार हो जाता है. दे गेट अलोंग इवेंचुअली, दे हैव चिल्ड्रन इवेंचुअली, वो सब होता है. तुर्किश ड्रामों में भी ऐसा हो रहा है, जापानीज में भी और चाइनीज में भी ये हो रहा है. तो शेख सादी Ma'am, but highlights that. जी, I don't watch dramas, ma'am. It has drama in it. you don't watch dramas? Because it has drama in it. ड्रामे में ड्रामा No, होता है life, मैम. हाँ, absolutely. Life is a drama itself. Sometimes I myself feel like a character in a drama. If I take my life or turn it into a book, let me tell you the dramatic incidences that I face on daily basis. Oh my God, they are enormous in number. Same goes for you. आप अगर अपनी लाइफ का थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, तो नहीं होते, घर जाते हैं अलग ड्रामा चल रहा है, हॉस्टल जा रहे हैं उधर अलग ड्रामा चल रहा है, क्लास आ रहे हैं उधर अलग ड्रामा चल रहा है, शॉपिंग पे जा रहे हैं वहाँ अलग ड्रामा चल रहा है. हम एक करेक्टर ही प्ले कर रहे हैं ना, ऑल ऑफ मैम अस वी आर प्लेइंग अ करेक्टर. मेरी मेरी एक्सक्यूज लाइफ मी, बहुत ज्यादा ड्रामे में है मैम. हाँ ना, मेरे भी है, मैं भी यही असल कह रही हूँ. में लाइफ का जो ड्रामा है मैम, उसके वो जॉनर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं. एब्सोल्युटली. शेक्सपियर की एक पोएम है बेटे, इट्स कॉल्ड द सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ. उसमें भी वो बात करता है कि वी वेयर मल्टीपल हैट्स, व्हिच मींस कि देखिए, आप स्टूडेंट भी हो, अब एक वर्ड यूज करूंगी, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आप लवर भी हो सकते हैं, आप एक गैंगस्टर भी हो सकते हैं, आप फन भी हैं, आप मामू भी हो सकते हैं. जो भी आपके रोल्स हैं, जो आप जॉब कर रहे होंगे तो आप किसी के सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, आप बॉस भी हो सकते हैं. इन सब रोल्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल का ड्रामा तो एडेड है. हमारी जिंदगी, आपको पता है, लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ. द ड्रामा इज ऑलवेज देयर. हम जितना भी अवॉइड कर, अगर मैं मुंह फुला के साइड पे बैठ भी जाती हूँ, मैं जिंदगी से या लोगों से कता ताल्लुक की भी कर देती हूँ, तो वो भी तो एक ड्रामे में टर्न हो, वो भी तो मेरा एक ड्रामा ही है ना, वो भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है. यू आर वेरी राइचसली पुट दिस वे कि हमारी डिफरेंट फेजेस जो डिफरेंट जॉनरास में कहीं ना कहीं फॉल कर जाते हैं. ठीक है, हमारे पास आता है जी एक बचपन का चाइल्डहुड जॉनरा आ जाता है, मेमोरीज का जॉनरा आ जाता है, अडल्टहुड में आ जाता है, उसमें हमारे पास लव, नौकरी और पैसों के मसाइल आ जाते हैं, ओल्ड एज में हेल्थ और रिलेशनशिप्स के इश्यूज आ जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ड्रामा तो हमारी जिंदगी में चल हुआ. तो इमेजिनेशन को ब्रॉडन करने के लिए कुछ ना कुछ देखा करें. न्यूज भी सुने ना, मुझे तो न्यूज भी ड्रामा ही लग रही होती है. मतलब कि इतना एग्जैजरेट करके चीजों को बताएंगे कि मुझे तो समटाइम्स डर ही लगने लग पड़ता है कि वेयर डू आई लिव एंड व्हाट एम आई डूइंग. तो मतलब कि अगर मैं बाहर निकली तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा. इतनी एग्जैजरेटेड न्यूज की होती है कि डर सा बैठ जाता है दिल में समटाइम्स. तो शेख हाइप सादी क्रिएट ऑफ करने के लिए मैम उनको करना पड़ता है. हाँ जी, दैट इज पार्ट ऑफ सेंसेशनलाइजेशन इन मीडिया स्टडीज समवेयर. क्योंकि हम जो है ना मसाले वाली न्यूज ही पढ़ेंगे, हमें सीधी सादी न्यूज में इंटरेस्ट नहीं है. हमें जब तक वो ये नहीं बोलेंगे ना, उसने उसको ऐसा कर दिया और ये हो गया, हमें हमें मजा ही नहीं आता, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है.
एक मर्डर को अगर उन्होंने मैम कमिट ऑडियंस की करना है, अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह करते हैं ना मैम? जी जी बिल्कुल ऐसा ही, ऑडियंस ओरिएंटेड होने के लिए इसी तरह के ड्रामास बनते हैं, एब्सोल्युटली इसी तरह की न्यूज भी बनती है, कैची लाइंस बनाई जाती हैं और समटाइम्स वो मिसलीडिंग भी होती है, मतलब होता आदमी कुछ और ही होता है, लेकिन जो हेडलाइन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि हमें कुछ और लग रहा होता है। Sorry. When Sadi acknowledges emotion but warns against excess, balance is essential. So the fact that I've mentioned, those references of multiple types of dramas that I've watched recently, all of those, they showcase the concept of love, yes. But that is very possessive, very, क्या कहना चाहिए, imbalanced, या उसको कह सकते हैं somehow superficial या passionate, ठीक है? उसको बैलेंस्ड बनाने के लिए वो फिर बहुत सारे हार्डशिप्स से गुजरते हैं और सारे करेक्टर बहुत सारे जिंदगी के मसाइल से गुजर के एक स्टेबल लाइफ की तरफ पहुंचते हैं। शुरू में तो उनके भी बहुत सारे जो पैशन होते हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं, तो इसमें से हम एक स्टोरी पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ एंड व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट इट। Okay, then we have chapter number 6 that talks about experience comes from a old age to more. अब देखिए, it is not a necessity that you get uh, maturation, यानी आप तभी mature हो जब आप physically बड़े हो जाए, लाइक जरूरी नहीं कि अगर आप 60-70 साल के हो गए, 50 साल के हो गए हैं तो आप मेच्योर भी हैं, ठीक है? यस, आपने बहुत लाइफ देखी हो, लेकिन एवरीबडी, हर कोई मेच्योर हो जरूरी नहीं है, हर कोई उसमें एक्सेप्टेंस लेवल कहीं ना कहीं डेवलप हो जाए जरूरी नहीं है। वन ऑफ माय कॉलीग्स और एक्वेंटेंसेस जिन्हें मैं जानती हूँ, बहुत बहुत मास मीडिया से हैं, वो बहुत जबरदस्त है, शी इज वेरी गुड, वेरी एलोक्वेंट, वेरी गुड लुकिंग, कायद आजम यूनिवर्सिटी से डिस्टिंक्शन से क्या होता है वो गोल्ड मेडल्स के साथ उसने पास किया है, बहुत अच्छा लिखती है, बोल भी लेती है, बट शी इज कैमरा शाय, शी इज यानी क्राउड से डर लगता है या प्रेजेंटेशन से कह ले उनको डर लगता है, and for only this reason she did not carry forward her study, she did not join a channel, she did not do anything, तो वो बैकग्राउंड पे रहकर, यानी शी इज अ राइटर नाउ, आर्टिकल्स वगैरह लिखती है, लेकिन इन माय अंडरस्टैंडिंग जितना मैं उन्हें जानती हूँ, if she comes in front she will be a leading name in this industry, आसानी से बन सकती है, लेकिन probably she is too young at the moment, and मुझे लगता है कि वो जो उनकी हेसिटेशन है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है ना, तो वो इवेंचुअली उससे निकल सकती है if she wants to, it's mind over matter always, नहीं? तो she is unable to come out of that bubble that she has created around herself, तो हम सभी किसी ना किसी किस्म के बबल में रहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है ओवर द इयर्स आई हैव डेवलप्ड बट आई एम नॉट कंप्लीटली मैच्योर, अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को पड़ा हुआ है, राइट? आपकी भी अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगी, आपको समटाइम्स लगता होगा कि ये मैंने बड़ा वाइज डिसीजन लिया और समटाइम्स आपको लगता होगा ये मैंने क्या कर दिया। इसी को, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना, अगर आप ये सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लेते हो तो आप इवॉल्व हो रहे हो, आप बाय द एज, बाय अ सर्टेन एज बहुत मैच्योर हो जाओगे, ठीक है? So old age brings physical weakness but mental maturity. If you're in the right way, if you're thinking the right way, then it will definitely give you the sound mind to understand what maturation is. Sadi respects experience over physical strength. Wisdom grows with time. Like I told you, patience जो है, मेरा patience level, acceptance level या खामोश रहने का level over the years develop हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि the moment I started working to make me patient थी, ये बहुत वक्त के बाद ऐसे हुआ, ठीक है? I have professors जो काफी मतलब रिटायर होने वाले कगार पे हैं, थ्रेशोल्ड पे हैं, लेकिन उनमें जीरो पेशेंस है, वो हमें ऐसे डांटते हैं ना, आप में से किसी को पढ़े ना तो आपने तो पुलिस बुला लेनी, ऐसे डांट पड़ती है हमें अभी, अपने कह रहे हैं मेरे से ऐसे बात कैसे की, हाउ डेयर देम, लेकिन हमसे वो कर लेते हैं तो हम कर लेते हैं क्योंकि हम उनको somehow हम ये बिलीव करते हैं कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, जो कि इवेंचुअली वो कंसेप्ट जेनजीज ने बहुत अच्छे से डिसमेंटल कर दिया होगा। फिर आ जाता है जीपीटी चैप्टर नंबर 7 दैट टॉक्स अबाउट दैट कैरेक्टर बिल्डिंग इज ओनली पॉसिबल विद एजुकेशन, ठीक है? इट हैज द एबिलिटी टू शेप द कैरेक्टर अर्ली इन लाइफ. He shows that bad nature cannot always be corrected, even with training, through powerful examples. जैसे आज के दौर में ना आपने देखा होगा कि बहुत पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा
प्रॉब्लमेटिक है। अब ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू मे डिसएग्री। मुझे लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा हम्बल है, रिस्पेक्टफुल है, उसमें मैनरिज्म की ज्यादा वो क्या कह सकते हैं क्वांटिटी है। लेकिन जिसने थोड़ा पढ़ लिया है, कुछ अचीव कर लिया है, कुछ मतलब पैसे वैसे बना लिए हैं, कोई डेजिग्नेशन बना लिया, वो ज्यादा ही हवा में उड़ने वाला। अब ये वही बात है जैसे आपने कहा था कि इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट थिंग्स, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे वो एग्जांपल्स देगा और बताएगा कि समटाइम्स सम पीपल कैन नॉट बी करेक्ट। वो आपने सुना होगा कि हजरत ईसा कहते थे कि मैं एक मुर्दे में तो जान फूंक सकता हूँ, लेकिन एक नामाकूल शख्स को माकूलियत नहीं सिखा सकता। तो दैट इज द काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट इज behind this chapter. Then chapter number 8, the final chapter, is about the duties in the society. Yes, all of us, we are a social construct, which means we, for example, I'll just use the word I am a product of a society. I usually take my decisions based on, most of the decision based on what and how society expects me to take those decisions. Yes, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो personally मुझे ठीक लग रहा है मैं वो भी करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं eventually I fall prey to the societal expectations and duties. And this chapter, Sadi, focuses on individuals must act responsibly towards others. Society thrives on justice and compassion. अब जैसे मैं like I told you, multiple यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बड़ी चीटिंग होती है। और सॉरी टू से, आई डोंट वांट टू से दिस, बट कुछ इंस्ट्रक्टर्स करने भी देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब फिर मेरे जैसे इंस्ट्रक्टर्स आके थोड़ी सी सख्ती करते हैं तो बच्चों को फिर हम पसंद नहीं, दे डोंट, वो कहते हैं आपको क्या है, दूसरा तो नहीं रोकता है। लेकिन समहाउ मेरे माइंड में ये है कि एज मुझे वहाँ इन्विजिलेशन की पेमेंट हो रही है ना, आई एम देयर फॉर वन पर्पस ओनली, टू स्टॉप फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स, कि मैं आपको टाइमली पेजेस और सब प्रोवाइड करूँ और इस तरह की अनफेयर मीन्स को खत्म करूँ। तो बच्चे जो हैं आजकल, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी इसलिए भी डगमगा गया है कि देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल एज वेल, कि कहीं ना कहीं दे लेट इट स्लाइड, मोबाइल पर लगे रहेंगे इंस्ट्रक्टर जो इन्विजिलेशन करते हैं, वो और नहीं करेंगे। कोई बच्चा पसंद है तो उसको शायद चीट भी करा दें, ऐसा भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुलफिल नहीं करता है, और उससे इम्पैक्ट क्या होता है कि जो बच्चा देख रहा है, जो अच्छा बच्चा भी है, जो ये सब नहीं करना चाहता, वो डिसहार्ट हो जाता है। वो फिर कहता है कि मैं क्यों पढ़ के आऊँ, फिर मैं 6-6 12-12 घंटे पढ़कर आया हूँ और ये बच्चा जो है मोबाइल से चैट जीपीटी से छाप दे। तो ऐसा भी हो रहा है। तो मैं तो मतलब आपके साथ वाली यूनिवर्सिटी में जब मैं जाती हूँ किसी क्लास में इन्विजिलेशन में, तो उन्हें पता है कि इन्होंने नहीं छोड़ना, तो ऑटोमेटिकली गैजेट्स और चिट्टे और जो भी बना कर लाते हैं फ्रेंड पे खुद ही छोड़ देते हैं। तो acting responsibly for yourself and people around you is equally important. That shows a sense of justice and compassion. ठीक है बेटे, तो यही चैप्टर्स है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हर चैप्टर से एक स्टोरी बताऊंगी, क्विकली बताऊंगी, ताकि हम इसे फिनिश कर सकें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। No, ma'am. चलिए, that will be all for today. I'll see you in the next class. With Allah Hafiz, take care. Allah Hafiz, ma'am.